Roshan, 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 Roshan. Go on, go on. आज का दिन सच में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सुबह इतनी ज़बरदस्त स्नोफॉल और शाम को रशिया में एक स्पाइसी फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। यहाँ पे चाइनीज रेस्टोरेंट है और यहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें एक फॉर्म भरना है और स्पाइसी खाना खाना है। जो पहले खा लेगा उसको 5,000 रुपये का इनाम है। एक ही दिन में इतना सब कुछ हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. I like when the snow is fresh, clean, it's not sticky, and you can like, and you hear the way it cracks on your feet. But it's minus 30, minus 20, and you walk out in the morning in complete dark to go to work, and the yard is covered with snow. You're the first one to walk there, and you walk in the quiet and you hear that under your feet. That's an amazing feeling actually. So how thick is the layer? Minus 30, minus 40. I don't know, depends on the snow. How thick is the layer? Yeah, the layer of the snow. Right now it's not much thick but still very cold. Every winter is unpredictable. Sometimes you can have 2 meters of snow, sometimes you can have like 10 centimeters of snow. 2 meters? And then in March, like another meter, 40 centimeters of snow. You're talking about 2 meters? Yeah. It's very, very deep. Maybe not in Tumen, but at the north for sure. 2 meter मतलब हो गया 6 फीट के आसपास. Some years ago we would have 2 meters of snow. Oh, very, very deep. Not these days. Probably not this winter. No. It depends. Year to year is difference. अभी यहाँ पे शुरुआत हुई है। -12 के आसपास टेम्परेचर है। आज स्नोफॉल हो रही है। हर जगह दिखाता हूँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। स्टार्टिंग है क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी वेट करो जब -30 और 40 तक जाएगा तब मज़ा आएगा। क्योंकि जो इसके पास जैकेट है, ये कह रही थी जेनी कि ये तो कुछ ठंड है भी नहीं, हमारे पास अलग जैकेट्स होती है पहनने के लिए। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, देखूँगा मैं क्या सिचुएशन बनता है। हाँ यार, हवा बहुत तेज़ चल रही है। इतना एक्सट्रीम वेदर मैंने कभी फेस नहीं किया, फर्स्ट टाइम है जो मैं फेस कर रहा हूँ। क्योंकि है -12 लेकिन हवा इतनी तेज़ है ना, बहुत ठंड लग रही है। आज जम से रहे हैं। आज हर तरफ बर्फ की सफेद चादर से बिछी है। सच कहूँ, स्नोफॉल देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतना ही मुश्किल है यहाँ। फिर भी हर स्नोफॉल का अपना ही एक मैजिक होता है। Did you see the pigeon? It didn't even move. Like they're not scared of me. They're scared to freeze. I can go there and grab a pigeon because they're cold. Can you I don't want to. try? I could no. I hate pigeons. But I mean they're so frozen that they cannot think clearly. So I just walked. I could kick it easily. जैसे जेनी ने ना हाथ में ग्लव्स पहन रखा है, अभी मैंने पहने नहीं है क्योंकि कैमरा होल्ड करने में ग्लव्स बनते नहीं है, फिसल जाते हैं हाथ से, तो इसलिए अब पहनना पड़ेगा। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। हाथ पूरे जम से रहे, अंदर चुलबुले नहीं काटते जैसे कि खून दौड़ रहा है और चुभ रहा है। मैं बस जेनी को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ आगे। Feel this ice. Yeah, but this is more slippery. Yes, the most dangerous thing is when the ice is covered with a little bit snow. So you don't see the ice and it's easy to slip. आगे का रास्ता दिखाता हूँ। इस समय भी लोग कैसे जॉब पे जाते हैं। जैसे अभी जेनी जा रही है, दिन के बज रहे हैं 12 साढ़े 12 के आसपास और ठंड ऐसी हो रही है कि पूछो मत। जेनी का भी मन हुआ ब्लॉग बनाने का और बस मैडम जी भी शुरू हो गई। So would you like to go and walk alone by the river without me? Or you're scared that you will freeze and nobody will find your body till spring? No, I won't like to go alone. I need someone who can take my dead bodies to my family. If I come back home in the evening and not find you, I will go and search. Believe me, I promise you, I would bring your ashes to India. Thank you so much. That's what I wanted to hear. You
can show and explain even in Ruski language, no problem. Even in Russian? Yeah, why not? Go ahead. So I'll explain in English. So as you see, the streets are covered with snow. People are freezing, but it's okay. For us, it's no big deal. The only thing I don't like is the colors these days. Not many colors. Careful. I have to eat. You have to what? Eat? I have to be careful. Yes. This here, there's no ice. You have to hold. Now. Да, ну вот как-то так и живем. Что поделать? Глаза. Let's hide. Finally, we can hide from the wind at least. भाई मेरे नाक जाम से हो रहे पूरे के पूरे. Hello. Just saying my nose is freezing. Hello. दवाई. ये सारे बच्चे जा रहे हैं. मॉर्निंग में इनका जाना होगा. अभी स्कूल टाइम या कहाँ पर. सब स्कूल वाले बच्चे लग रहे हैं वैसे तो. Can you see ice on my eyelashes? Yeah. Here also. Yes, a lot. हर जगह वाइट चादर है, हर जगह. जाने की यार ये बस थोड़ा सा इंतजार और करो, कुछ दिन और, तब पता लगेगा कि -30-35 कैसा होता है. इसके लिए तो नॉर्मल है यार. Jenny, it's for you it's normal I guess this temperature. Yeah. You just have to be dressed properly, and your body should be a little bit adapted. Now your body is getting adapted more than if you would just come here from India. You would have problems. I agree. You would struggle. I agree. But after 2 weeks, and the temperature's been lowering consistently, Yeah. so it's not so terrible. Okay, bye bye. Take care. See you. वो जा रहे हैं अपनी बस में. हो रही. ओके सो वो यहाँ से गई है. अब मैं निकलूँ घर पे, रूम पे निकल जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है यहाँ पे. मेरे लिए है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का टेम्परेचर मैं झेलने वाला हूँ उस तरीके के है नहीं. मेरी बॉडी ऑफकोर्स मैं दिल्ली में रहने वाला बंदा हूँ, तो इतना टेम्परेचर में नहीं झेल सकता. ऑनेस्टली मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है. हाँ, अच्छी बात यह है कि मुझे जैनी के फादर ने ये जैकेट दे दी थी. ये जैकेट बहुत ही गर्म है, सच में बहुत गर्म है. जैनी की फादर ने दी थी. ग्लव्स मुझे जैनी ने दे रखे हैं, जूते, बूट्स. मुझे जैनी ने ये वाले बूट्स दिए थे, ये वाले. तो वो है एक्वा पार्क लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ. वो लिखा हुआ है एक्वा पार्क. एक्वा. गर्मी में लोग यहाँ पे आते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लोग अपने घर के बारह पे धूल साफ़ करते हैं, यहाँ बर्फ़ है साफ़ करते हैं. लोग जो है यहाँ से घर से बिल्कुल टाइम पे निकलते हैं. बिल्कुल ऐसा टाइम, मतलब मान के चलो कि घर का डिस्टेंस और स्टेशन का डिस्टेंस 2 मिनट का है. अगर बस आने वाली है 2 मिनट के अंदर, तो घर से निकलेंगे उस हिसाब से कि सिर्फ 1 मिनट पहुँच जाए और खड़े रहे, और बस आए तो चले जाए. क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहने का मतलब है यहाँ पे बीमारी को, या फिर यहाँ तो मैं ये नहीं कह सकता फ्रोज़न वाइट इस समय, क्योंकि -12 में उतना फ्रोज़न वाइट होने के चांसेस बहुत कम है. लेकिन अगर -30-35 तक है तो भाई फ्रोज़न वाइट हो सकता है. मतलब आपके हाथ या कुछ चीज़ें नीला पड़ जाएगा बिल्कुल ही. और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जहाँ पे उसको काटना पड़ जाए उंगली वगैरह को. आज फिर जेनी का इंग्लिश क्लब है. मुझे लगा नॉर्मल डिस्कशन होगा, कॉफ़ी पियेंगे, बातें करेंगे और घर आ जाएंगे. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज का सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है.
मतलब आप रशिया में ठंड में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक तो बर्फ़ गिरेगी। अभी भी ठंडी हो रही है, लेकिन जो बर्फ़ पिघल जाती है यहाँ पानी पानी बन जाता है। यहाँ पे कोई कार वगैरह चलती है तो कीचड़ सा बन जाता है। थोड़ा ध्यान से इसको क्रॉस करना पड़ता है। कभी कभार आपके जो बूट्स है उसके स्पाइक्स अच्छे नहीं हैं तो स्किप करता है, फिसलता है ये। मैं बैठा हुआ था और जेनी ने कहा कि इंग्लिश क्लब के लिए अगर ज्वाइन करना है तो आ सकते हो। मैंने कहा इसी बहाने बाहर घूम लूँगा, क्योंकि भाई मैं ये कहूँगा 2-3 घंटे भी नहीं, बिल्कुल धूप नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। ब्लैक सा रहता है और बाहर ना निकलो तो अजीब सा मूड रहता है। मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन से मैंने धूप नहीं देखी, मुझे इरिटेशन सी हो रही है। तो जितना बाहर निकलो सही है। बाहर निकलने के नाम पे आप 1-2 जगह जा सकते हो। तो जब भी मौका मिलता है मेरे को यहाँ जाने का, वहाँ जाने का, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, क्योंकि ज़्यादा घूम नहीं पाऊँगा बाहर और वो मुझे बाकी जगह दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है यार। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 बजने वाले हैं, तब यह हाल अंधेरे ऐसा हो रहा है और बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह। तो मैं जा रहा हूँ इंग्लिश क्लब के लिए। बोला Fancy as always. Nobody. You remember I told you I just can't choose my clothes properly these days. Is it too hot? This is the day. You look like -10, Yes. -20. Is this too hot? I want to go to Chiho. Chiho. So Chinese or something else, something like this food. Okay. You okay? ओके। अभी प्रोग्राम था लेकिन ओलिया को भूख लगी थी तो हमें लेके आए हैं ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। कुछ ऐसा सा दिखता है चाइनीज़ रेस्टोरेंट। हालांकि अगर मैं मेन्यू दिखाऊँ ना, प्रॉपर इंडियन जैसा ही है, जो चाइना में कॉमन है, जो इंडिया में भी कॉमन है ये चीज़ें। आज ओलिया की ड्रेस और उसके ग्लासेस दोनों रेस्टोरेंट के कलर से इतना परफेक्टली मैच कर रही हैं, मुझे तो ये यहाँ की ऑनर लग रही थी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इंडिया में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जैसे कि यहाँ पे सामान कोई ले रहा है, आप देख सकते हैं अगर 3 मिर्ची है मतलब ज़्यादा स्पाइसेस है, यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस है। 2 है, 2 मिर्ची है तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, 1 मिर्ची है तो उतना ही स्पाइसेस है। I mean, I'm saying in India it's not like this. It's spicy. Yeah, they have mentioned this thing. In India, everything is spicy, right? You would have this on everything, even on sweet ones. Not exactly, but yes. What do you like? फिर हमने अपने लिए खाना ऑर्डर करना शुरू किया। तभी अचानक हमने देखा कि आज इसी रेस्टोरेंट में एक स्पाइसी फूड कंपटीशन चल रहा है। Eating spicy food contest. Would you like to take place? यह कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, कौन ज़्यादा स्पाइसी फूड खा सकता है। मिल्क भी है यहाँ पर। You should eat this spicy dish the fastest, and you win 5,000 ruble certificate for this. You wanna take part? जेनी ने मेरी तरफ देखा और बोली, आप इंडिया से हो, आपको तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। लेकिन ट्रैवल करते करते कई महीनों से मैंने स्पाइसी फूड खाया ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा चलो देखते हैं, और मैंने कंपटीशन के लिए हाँ बोल दिया। А заявиться сейчас, для того, чтобы участвовать сейчас, определенное время. Обычно, да, анонсируем. Надо в соцсетях посмотреть, да? Да. यहाँ फिर कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि जो जीतेगा उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। ओके। You can take place now because one person just didn't show up, so you can take the place. You want? यहाँ पे चाइनीज रेस्टोरेंट है और यहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें एक फॉर्म भरना है और स्पाइसी खाना खाना है। जो पहले खा लेगा उसको 5,000 रुपये का इनाम है। देखता हूँ इसमें क्या खा लोगे इंडियन, और मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया है। Name. मुझे सच में नहीं पता कितना ही तीखा होगा। फूड कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे दूध दे रखा है, 2 तरीके की चीज़ें हैं।
Едим по двое. Сначала едят девушки. Сначала едят First girls девушки. eat. Они заканчивают, и They потом считаем finish, вас. and then they measure how long you will eat. The goal is to eat fastest. ओके कंपटीशन में मेरे साथ 2 और गर्ल्स थी और कंपटीशन शुरू हुआ। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा स्पाइसी था। मुंह जल रहा था, आंखों में पानी, लेकिन गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना था। Is it spicy? Yes, it is. Very spicy. You have milk and water, just in case. Yeah. Yummy. Yummy. Соберись. Каково? Вкусно? Вполне. Нормально? Все шансы на победу. उधर दोनों गर्ल्स की भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और कुछ ही देर बाद पहली पार्टिसिपेंट ने गिव अप कर दिया। अब कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग हो गया। Мы не ограничиваем. Просто кто вперед, да? Come on. Если ты справишься за 40 секунд, то ты Tasty, tasty. Я не могу что-то такое есть. 40 seconds. Do it in 40 seconds. How is it? Very spicy? Yes, a lot. Нет, тяжело идет. Это просто больно. Мне не влезет. Это вкусно. Давай, давай, соревнование. Контест. Рошан, 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 Рошан. Go on, go on, go on. You're doing good. Рошан, Рошан. Сколько секунд до рекорда? Нет уже. Все. Ну, хоть закончит. Да, конечно. Вот по чисто, тут бы ты выиграла. Если был только суп. Суп просто очень легко есть. Кто проигрывает, тот доедает за всеми. Go on, go on, go on. Just a little left. Just a little. Давай, давай, давай. Рошан, 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 Рошан. Все, done. Он съел. You okay? बहुत ही मीठी वाला है। Super spicy. Super spicy. Yeah, super spicy. Индус он говорит, очень остро. Да. Он съел, но говорит, прям очень, очень остро. Can I have some more milk? Can I ask you where are you from? From India. India. Хорошо. Ну, я ну, потому что это нормальная реакция организма. Ой, это ужас. Можно мне тоже, пожалуйста, Богом прошу, спасибо. Надо на лакам? Хороший. Я тогда блевать пойду. Спасибо, यार ये нет? बहुत स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी। हालांकि जीत तो गया हूँ मैं, लेकिन बहुत स्पाइसी है, पूरा मुंह जल रहा है मेरा। Your face is red. This is the This first time I is see warning actually. I believe it. For a long time I did not eat spicy. Лиза, это твой суп? Not that. I know. Next morning I will be terrible. Really? You are superhero. भाई बहुत ही तीखा था, इतना तीखा था, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरे को जेनी ने आइसक्रीम खरीद के दी है, मैं खाता हुआ जा रहा हूँ। ये थी जेनी, मेरे को करवा दिया ऐसे ज़बरदस्ती, ख़त्म कर दिया। वहाँ पे कोई लोग पूरा ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। चेस्ट पे पेन हो रहा है मेरे तो यहाँ से। Like every Russian child, you're eating ice cream in the winter right now. हाँ हाँ, ये भी है भाई। सबने यहाँ पे कैप पहन रखी है, मैं दिखाता हूँ। We have, yes. We have this thing. सबने हैट वगैरह पहन रखी है। और जैसे मैंने खाया भाई, मेरा पूरा मुंह और सर खुजाने लग गया, इसलिए बिना टोपी के घूम रहा हूँ। और नॉर्मल लग रहा है ये, एकदम ठंड में मुझे खाना है।
इतना स्पाइसी फूड खाने के कारण मेरे से और वीडियो नहीं बनाया गया। कभी कभी लाइफ में सबसे यादगार मोमेंट वही होते हैं जो बिल्कुल प्लान नहीं होते। सुबह स्नोफॉल, शाम को स्पाइसी फूड कंपटीशन, यही तो ट्रैवल की असली खूबसूरती है। आप डेस्टिनेशन से ज्यादा उस मोमेंट को याद रखते हो और बीच में इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड मेमोरीज जो आपने कभी प्लान ही नहीं किए होते हैं। और सच कहूँ, आज का दिन उन्हीं यादगार दिनों में से एक था। कमेंट करके बताना आपको कौन सा स्पाइसी फूड पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।